नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मप्रिया आर्य। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। कमल नगर तालुका में बढ़ता बी ग्राम में 8 मई को डॉक्टर BR अम्बेडकर की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम के संबंध में आज गुरुवार को मयूर बरिशाह होटल में प्रेस मीट आयोजित की गई। हिंदू बहनों ने ईदगाह को दे दी अपनी 1 करोड़ से अधिक की जमीन, पूरी की पिता की आखिरी इच्छा। महाराष्ट्र में जारी लाउडस्पीकर विवाद के बीच मुस्लिम धर्मगुरुओं का बड़ा फैसला, बिना लाउडस्पीकर होगी सुबह की अजान। दिल्ली के वेलकम थाना क्षेत्र में बच्चों के विवाद में भिड़े 2 समुदाय के लोग, 3 गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 20 IAS अधिकारियों सहित 33 नौकरशाहों का हुआ तबादला। अब समाचार विस्तार से। दलित संगठन गढ़ा व कोटा बिदर जिला समिति की तरफ से कमल नगर तालुका के बढ़ता बी ग्राम में 8 मई को डॉक्टर BR अम्बेडकर की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम के संबंध में आज गुरुवार को मयूर बरिशाही होटल में एक प्रेस मीट आयोजित की गई, जिसमें बाबू पासवान, बसवराज मड़गी, रमेश डाकुर्गी, मन्नान सेठ, बकप्पा डांडे और दूसरे उपस्थित रहे। उन सभी ने अम्बेडकर की मूर्ति के अनावरण के संबंध में बताया। इस मूर्ति का अनावरण राज्यसभा के अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। इस प्रेस मीट के अवसर पर इस कार्यक्रम का पोस्टर भी जारी किया गया। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। रमेश डाकुर्गी साहब और बसवराज मड़गी साहब, बाबू पासवान साहब ने बताया, उसी बात को मैं हिंदी में आपके सामने पेश करता हूँ। 8 तारीख को कमल नगर तालुका के छोटे से गांव बड़दबी में एक बहुत बड़ा विशाल बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण होने जा रहा है। वो अनावरण हमारे देश के राज्यसभा के अपोजिशन लीडर श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जो इस बीदर जिले के सुपुत्र हैं, वो यहीं के वरवटी गांव से ताल्लुक है उनके हाथों से होने जा रहा है। ये एक हिस्टोरिक इवेंट है। मैं आप तमाम प्रेस के लोगों से के जरिए और टीवी मीडिया के थ्रू बीदर की महाजनता से ये अपील करता हूं कि इस हिस्टोरिक इवेंट में ज्यादा से ज्यादा तादाद में शिरकत करके इसको कामयाब बनाएं और इसको एक हिस्टोरिक इवेंट बनाएं। ನಮ್ಮ ನೌಕರ ಬಾಂಧವರು ಬಹಳ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಆತುರತೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾದಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ನೌಕರ ಬಾಂಧವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಾನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಚಂದ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುತ್ತುದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ಕೋರಂತ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ, ಅದು ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಅರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಂವಿಧಾನ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ತಾರೀಕಿದಾಗ। ಜೊತೆಗೆ ಅವತ್ತು ತಥಾಗತ ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧರ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮತ್ತು 501 ಉಪಾಸಕರ ಒಂದು ಬುದ್ಧ ಧರ್ಮ ದೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಇದು ಬಹಳ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ದೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಡಿಮೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಬರೀ ಮೂರ್ತಿ ಅನಾವರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತೀವಿ। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕುಗಳಿಂದ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದವರು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅನುಯಾಯಿಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮತ್ತು ಇದು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಸುಮಾರು 5,000 ಜನ ಸೇರೋ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ। 5,000 ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಭವ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಲಾತೂರ್ನಿಂದ ಒಂದು ಟೆಂಟ್ ಹೌಸ್ ನವರು ಬಹಳ ಭವ್ಯವಾದಂತಹ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅಲ್ಲಿ 5,000 ಜನರಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ। ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾವೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರ ಮೂರ್ತಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಬಂತೇಜಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಆಮೇಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 3:30-4 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು, ಇನ್ನುಳಿದಂತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ಬಂಡೆಪ್ಪ ಕಾಶಂಪುರ್ ಅವರು, ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರು, ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕ ಮತ್ತು MLCಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ। ನಾವು ಇಡೀ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಹಾಜನತೆಗೆ ಒಂದು ಅಪೀಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಮಹಾಜನತೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಮೂರ್ತಿ ಅನಾವರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ದಲಿತ ಸಮಾಜದ ನೌಕರ ವರ್ಗದವರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ।
तेलंगाना के मुल्लाक जिले के वाजिदो पुलिस स्टेशन पर एक सब इंस्पेक्टर ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने कहा कि सीआरपीएफ कस्बा इंस्पेक्टर जेडल ठाकरे 3 साल से थाने में सेवा कर रहे थे। ठाकरे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। पुलिस ने इस संबंध में एक मामला दर्ज किया और पुलिस को भेज दिया। शव परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। अपने दिवंगत पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए 2 हिंदू बहनों ने 1.5 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की अपनी 4 बीघा जमीन ईद के त्योहार से पहले ईदगाह के विस्तार के लिए दे दी। इन बहनों के दान ने मुसलमानों के दिल को छू लिया है और उन्होंने भी मंगलवार को दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। देश के विभिन्न हिस्सों से आ रही सांप्रदायिक तनाव की खबरों के बीच 2 बहनों की यह उदारता उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के छोटे से शहर काशीपुर में चर्चा का विषय बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक 20 वर्ष पहले स्वर्गवास से पहले ब्रजनंदन प्रसाद रस्तोगी ने अपने करीबी रिश्तेदारों को बताया था कि वह अपनी 4 बीघा कृषि भूमि नजदीक ही बने ईदगाह के विस्तार के लिए दान देना चाहते हैं। हालांकि अपने बच्चों को अंतिम इच्छा बताने से पहले ही रस्तोगी का जनवरी 2003 में निधन हो गया। दिल्ली और मेरठ में अपने परिवारों के साथ रह रही उनकी पुत्रियों सरोज और अनीता को हाल ही में अपने पिता की इस इच्छा के बारे में पता चला तो उन्होंने तत्काल काशीपुर में रहने वाले अपने भाई राकेश से सहमति लेने के लिए संपर्क किया। राकेश भी इस पर तुरंत राजी हो गए। संपर्क किए जाने पर राकेश रस्तोगी ने कहा, पिता की अंतिम इच्छा का सम्मान करना हमारा दायित्व है। मेरी बहनों ने कुछ ऐसा किया जिससे पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। ईदगाह कमेटी के हासिन खान ने कहा, दोनों बहनें सांप्रदायिक एकता की जीती जागती मिसाल है। ईदगाह कमेटी उनकी इस उदारता के लिए उनका आभार व्यक्त करती है। दोनों बहनों का जल्द ही अभिनंदन किया जाएगा। लाउडस्पीकर से होने वाली अजान को लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने बड़ा फैसला लिया है। फैसले के अनुसार अब सुबह की अजान बिना लाउडस्पीकर से दी जाएगी। मुंबई की मशहूर सुन्नी बड़ी मस्जिद मदनपुरा और मीनारा मस्जिद में सुबह की अजान की गई, जो कि बिना लाउडस्पीकर के हुई। दरअसल बुधवार देर रात साउथ मुंबई के करीब 26 मस्जिदों के धर्म गुरुओं ने बैठक कर फैसला किया कि अब सुबह की अजान बिना लाउडस्पीकर से दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाएगा। गौरतलब है कि मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर को लेकर महाराष्ट्र में लंबे समय से विवाद चल रहा है। दिल्ली के वेलकम थाना क्षेत्र स्थित पार्क में बुधवार की शाम 2 समुदायों के बीच एक झड़प मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बच्चों के विवाद में हुई घटना में कार्रवाई करते हुए स्थानीय पुलिस ने कुल 34 लोगों को हिरासत में लिया है। थाना के अधिकारियों ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी। अधिकारियों की माने तो बुधवार की रात करीब 9:50 पर उन्हें सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के फोटो चौक के समीप 2 पक्षों में लड़ाई हो रही है। सूचना मिलते ही पुलिस बल को मौके पर भेजा गया। हालांकि अधिक भीड़ देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया ताकि स्थिति नियंत्रित की जा सके। जम्मू कश्मीर में एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत 20 भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों सहित 33 नौकरशाहों के तबादले और तैनाती का आदेश जारी किया गया है। आदेश बुधवार देर रात जारी किया गया। आदेश अनुसार जम्मू के संभागीय आयुक्त और 6 उपायुक्त को तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया गया है। 1979 बैच के आईएएस अधिकारी अटल डुल्लू को करीब 10 महीने पहले ही कृषि उत्पादन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर तैनात किया गया था। आदेश में कहा गया कि साल 1990 बैच के आईएएस अधिकारी विवेक भारद्वाज को उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक सचिव और व्यावसायिक प्रवेश परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के साथ साथ अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920,
82221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखें आगे के समाचार। रामपुर में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने समीक्षा बैठक के बाद प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार की सभी उपलब्धियों को गिनाया, साथ ही आम जनता से जुड़ी समस्त उपलब्धियों को विस्तार से बताया। उसके बाद कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह रामपुर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने इमरजेंसी वार्ड में पहुंचने के बाद भर्ती मरीजों से वार्तालाप कर स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री ने कोविड वार्ड का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कैबिनेट मंत्री ने सीएमओ और सीएमएस को बढ़ते कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए सभी तैयारी करने के पूर्ण निर्देश दिए। रामपुर से केपी न्यूज के रिपोर्टर नाजिम अली की रिपोर्ट। योगी जी पुनः मुख्यमंत्री बनने के बाद निर्णय लिया कि जनता जनार्दन के बीच में जाना चाहिए और जनता जनार्दन की समस्या को चौपाल के माध्यम से सुनना, उन समस्याओं का निस्तारण करना, इसकी चिंता करना चाहिए। सरकार की जो योजना पिछले 5 वर्षों से चल रही है, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, गौ स्थल, कोविड हॉस्पिटल और गरीबों की कल्याण की योजना, तालाबों पोखरों की योजना, नदियों को जिंदा करने की योजना और कानून व्यवस्था, ये सभी बिंदुओं पर भी चर्चा करनी है। ये सबको दृष्टि को रखते हुए परसों की रात से टीम आई है। मेरे साथ 2 और मंत्री हैं। आज वो विभिन्न जनपदों में गए हैं, बिजनौर और संभल में। हम रामपुर आए, इसलिए रामपुर जनपद महत्वपूर्ण है और यहाँ के गरीबों का विकास होना चाहिए। सालों से 70 सालों से कांग्रेस का शासन रहा है, सपा बसपा का शासन रहा है। पिछले 5 सालों से योगी जी नेतृत्व कर रहे हैं राज्य का। गरीब का कल्याण कैसे होगा, गरीब की खुशहाली कैसे होगी, ऐसे जिन गरीबों को
आवास या राजस्व गांव में नहीं जोड़े जाते, ऐसे लोगों की चिंता कौन करेगा? तो वनटांगिया है, मुसहर है, थारू है, इन सभी की चिंता करते हुए सभी गरीबों का पक्का मकान बने, ऐसे राज्य के अंदर 43 लाख आवास देने का काम, उसी के तहत यानी रामपुर में 72 करोड़ रुपए की धनराशि 6113 आवास निर्मित किए गए हैं। मुख्यमंत्री आवास के तहत 51 लाख से 43 आवास निर्मित किए गए हैं। जल शक्ति अभियान के अंतर्गत 1191 तालाबों का जीर्णोद्धार पूर्ण 75 अमृत सरोवर को विकसित किए जा रहे हैं। तो मार्गों के निर्माण की प्रमुखता प्रदान की गई है। भू माफियाओं के विरुद्ध 147 भू माफियों तथा अतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 1794 मामलों का निस्तारण कराकर 639.76 हेक्टेयर भूमि अतिक्रमण से मुक्त करा गया है। यानी गन्ना किसानों का भुगतान हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसानों को ऋण मोचन का काम हो, फसल ऋण मोचन हो, गन्ना किसानों का पेमेंट हो, शादी अनुदान, पेंशन, दिव्यांग पेंशन, कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिलाओं को पेंशन। राजस्थान के कोटा संभाग के 12 जिले में पुलिस का नया मानवीय अवतार देखने को मिला है। यहाँ के साथल पुलिस थाने इलाके में 2.5 माह की मासूम आदिवासी बच्ची को भीषण गर्मी में भूख प्यास से तड़पती देख थाना अधिकारी से लेकर हर एक जवान चिंतित हो उठा। बच्ची की हालत को देखकर थाने की 2 महिला कांस्टेबल ने उसे अपना दूध पिलाकर मानवता की नई इबारत लिखी है। यह बच्ची नशे में धुत उसके पिता के पास जंगल में मिली थी। बच्ची को अब उसकी मां को सौंप दिया गया है। बच्ची की जान बचाने वाली महिला कांस्टेबल के बारे में जिस किसी ने भी सुना वह उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। थाना अधिकारी महावीर किरण ने बताया कि 2.5 माह की मासूम के लिए पुलिस थाने पर तैनात दोनों महिला कांस्टेबलों ने यशोदा मां बनकर बारी बारी से अपना दूध पिलाकर उसकी जान बचाई। 4 मई को दोपहर में सूचना मिली थी कि 30 वर्षीय एक शख्स नशे की हालत में थाना इलाके के पहाड़ी जंगली क्षेत्र में पैदल गुजर रहा है। उसके पास एक बच्ची है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। वहां जंगल में झाड़ियों में घुसा हुआ एक व्यक्ति मिला। वह नशे में धुत था। उसके पास गर्मी से बेहाल अचेत अवस्था में 2.5 माह की बच्ची मिली। उसे महिला कांस्टेबल मुकलेश ने तुरंत सीने से चिपका लिया। सीमा सुरक्षा बल ने जम्मू के सांबा सेक्टर में सुरंग का पता लगाया है जो पाकिस्तान से बनाई गई थी। बीएसएफ का मानना है कि अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान इस सुरंग से आतंकी भेजने की कोशिश कर रहा होगा। इस सुरंग का पता लगाकर बीएसएफ ने अमरनाथ यात्रा को बाधित करने के लिए पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों के मंसूबों को विफल कर दिया है। जानकारी के मुताबिक ये सुरंग करीब 2 फीट चौड़ी है और इसमें 21 मिट्टी से भरे बैग निकले हैं जो सुरंग को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। पिछले 1.5 साल में बीएसएफ ने ये 5वीं सुरंग खोज निकाली है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान आतंकी भेजने या हथियार और ड्रग्स की तस्करी करने के लिए कर रहा था। दिल्ली के एक साधारण से ऑटो चालक ने गर्मी से बचने के लिए एक काफी अनोखा तरीका ढूंढ निकाला है। महेंद्र नाम के एक ऑटो चालक ने गर्मी से बचने के लिए अपनी ऑटो रिक्शा के ऊपर कई सारे पौधे लगा रखे हैं। महेंद्र ने ये भी बताया कि इन्होंने 2 सालों से अपने ऑटो के ऊपर ये पौधे लगाए हैं। इनसे इनकी गाड़ी के अंदर बैठने वाले लोगों को एसी वाली फीलिंग आती है। इनका कहना है कि अपनी गाड़ी में बैठने वाले लोगों से बदले में कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेते और ये चाहते हैं कि ऐसे ही दिल्ली के सारे ऑटो वाले अपने ऑटो को एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाएं। महेंद्र ने अपने ऑटो में पौधे लगाने के लिए बहुत सारी बोरियां और थोड़ी सी मिट्टी का इस्तेमाल किया है। इन्होंने पहले गाड़ी के छत पर बोरियां बिछाई और उस पर मिट्टी डाली ताकि उस पर पौधे आसानी से लगाए जा सकें। उसके बाद उन्होंने 25 अलग अलग तरह के पौधे और पालक, टमाटर, बाजरा, घिया और तोरी जैसी सब्जियां भी लगाई। कई महीनों में ये इनका ऑटो चलते फिरते बगीचे जैसा बन गया है। इन्होंने 2 साल में 3 बार अपने ऑटो के ऊपर वाली फसल को भी बदला है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कमल नगर तालुका में बढ़ता बी ग्राम में 8 मई को डॉक्टर BR अम्बेडकर की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम के संबंध में आज गुरुवार को मयूर बरिशाह होटल में प्रेस मीट आयोजित की गई। हिंदू बहनों ने ईदगाह को दे दी अपनी 1 करोड़ से अधिक की जमीन, पूरी की पिता की आखिरी इच्छा। महाराष्ट्र में जारी लाउडस्पीकर विवाद के बीच मुस्लिम धर्मगुरुओं का बड़ा फैसला, बिना लाउडस्पीकर होगी सुबह की अजान। दिल्ली के वेलकम थाना क्षेत्र में बच्चों के विवाद में भिड़े 2 समुदाय के लोग, 3 गिरफ्तार।
जम्मू कश्मीर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 20 IAS अधिकारियों सहित 33 नौकरशाहों का हुआ तबादला। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।